स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? हम ठीक है। क्लास 5 जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ा और कंप्यूटर के फीचर के बारे में पढ़ा। कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़े थे। अब हमारा अगला चैप्टर है सॉफ्टवेयर। फिर से बता देते हैं हम सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसलिए बच्चों, सॉफ्टवेयर के बिना हम लोगों का कंप्यूटर चल नहीं सकता। हार्डवेयर रखने से भी कोई मतलब नहीं होगा। विदाउट सॉफ्टवेयर का काम हम लोग कंप्यूटर पे नहीं कर सकते। जिस तरह से हमारी पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, बिना एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते, इस तरह से कंप्यूटर में बिना सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर खाली डिब्बा है, चल नहीं सकता। तो इसलिए बच्चों हमें सॉफ्टवेयर पे काफ़ी ध्यान देना होगा, सॉफ्टवेयर को कायदे से पढ़ना होगा। तो ठीक है बच्चों, आज सॉफ्टवेयर के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं, तो प्लीज़ देखिए फिर से। ठीक है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? वी all react differently according to the stations. Have you ever thought how it becomes possible? Let us understand this with the help of an example. What happens when your teacher asks question and you know it answer? You simply raise your hand is not what promotes you to raise the hand. It is the brain. It is the brain that gives your instructions to react in the manner. Similarly, computer gets all the instructions from the software to perform various tasks. Software is the soul of a computer, without which it cannot exist. Computer is a machine that does not possess any intelligence of its own. A computer without instruction is like a car without a driver. It requires a set of instructions given by a user to work on. These sets of instructions are called, dear students, programs, which are written in computer language. Software is the collection of programs that are stored and run on computer hardware and helps user to work on the computer. Software is the part of a computer which cannot be touched or seen. Software is of two types: system software and application software. तो बच्चों, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं हम इमेज में, ये ड्राइंग देखिए। ड्राइंग में दिया है सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके 2 पार्ट्स किए हैं। पहला पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा पार्ट है एप्लीकेशन। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट किए गए हैं। इसमें 3 पार्ट, इसमें 2 पार्ट। तो सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और लैंग्वेज प्रोसेसर है। ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है? जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो बच्चों फिर आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स the overall operational and internal working of a computer system. It reads data from input device and transfer the purpose pursued
information to output device. System software is three many types: operating system, language, processor and utility software. फिर हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड टू ऑपरेट a computer. An operating system controls the overall activities of a computer. It acts as a link between the user and the hardware and enables them to work together. Dear student, एग्जाम्पल के लिए एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स लाइक द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल. As the principal has various responsibility to manage, the school like supervising student teacher and workers, maintaining discipline, setting the examination schedule, timetable, curriculum and attending parents and visitors etc. In the same manner, an operating system performs various functions to manage the working of a computer. Imagine what will happen in there is not principal in the school. Everything will be minimized. A similarity of the operating system of computer in the operating system of a computer is not working properly, then you cannot work on it. MS DOS का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर देता है विंडो एक्सपी, विंडो 7 एंड द विंडो 8. यूनिक्स, लिनक्स, MS operating system are example of some popular operating system. तो बच्चों आज इतना बताते हैं. कल परसों की क्लास में, मंडे की क्लास में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं. सॉफ्टवेयर क्या है. ठीक है, सॉफ्टवेयर को ध्यान से पढ़ते हुए, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर चलना सब अनर्थक है, सब ठीक नहीं है, चल ही नहीं सकता बिना सॉफ्टवेयर के. तो बच्चों व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर. ठीक है, सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है. यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है. सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक निर्जीव है. जैसा कि हमने आपको बताया कि विदाउट सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर इज़ द डिब्बा. मतलब बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर एक डिब्बा के समान हो जाता है. ठीक है, सॉफ्टवेयर को अपनी आँखों से नहीं देख सकते, और ना ही इसे छुआ जा सकता है, क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है. जैसे भौतिक अस्तित्व, जैसे माउस, कीबोर्ड, हार्डवेयर के जितने भी हैं सब छू सकते हैं, उसका भौतिक अस्तित्व होता है. उस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए यह छुआ नहीं जा सकता. एक आभासी वस्तु है जिसे केवल समझा जा सकता है. ठीक है बच्चों, सॉफ्टवेयर होता क्या है. यदि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा
यदि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर मृत प्राणी के समान होगा, जो केवल लौह और अन्य धातुओं से बना एक बक्सा मात्र रह जाएगा। ठीक है। यदि आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र नहीं है तो आप लेसन को नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा MS ऑफिस, फोटोशॉप, एडोब रीडर सभी सॉफ्टवेयर हैं जो आपको कंप्यूटर पर अलग अलग कार्य करने के योग्य बनाते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर में जान फूंकता है, उसे काम करने के योग्य बनाता है और सॉफ्टवेयर की मदद से ही आप कंप्यूटर से अपना मनपसंद कार्य कर पाते हैं। सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकार। सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसा मैंने बताया टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये फिगर में देखिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, 2 टाइप्स है ना। तो हम कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कामों के लिए करते हैं और ये सभी काम कई प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर की मदद से पूरे नहीं किए जा सकते। जो सारे काम हैं एक ही सॉफ्टवेयर से पूरे नहीं किए जा सकते, इसलिए हर काम के लिए हर अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ठीक है। और कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए काम की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ठीक है। कौन कौन सा है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर का प्रबंध एवं नियंत्रण करता है और हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच क्रिया करने देता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई प्रकार हैं। जैसा कि बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा वह सॉफ्टवेयर है जो प्रबंध एवं नियंत्रण करता है और हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच क्रिया करने सिस्टम सॉफ्टवेयर के देता है। ठीक है। फिर आगे आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम रेड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोक्ता तथा कंप्यूटर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझता है, जैसे विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, ट्रिनिटी। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंड यूज़र सॉफ्टवेयर कहा जाता है क्योंकि इसका सीधा संबंध उपयोक्ता से होता है। इसे ऐप्स भी कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोक्ता को किसी विशेष कार्य को करने की आज़ादी देते हैं। इनके कई प्रकार हैं, जैसे बेसिक एप्लीकेशन। बेसिक एप्लीकेशन क्या है? बेसिक एप्लीकेशन को सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर मतलब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ये सामान्य इस्तेमाल के सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका उपयोग हम रोज़मर्रा मतलब डेली यूज के कार्यों के लिए करते हैं। किसी भी कंप्यूटर उपभोक्ता को कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए बेसिक एप्लीकेशन का इस्तेमाल तो आना ही चाहिए। जो जनरल पर्पस के नाम अलग अलग होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, मल्टीमीडिया प्रोग्राम, DTP प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, ग्राफिक्स एप्लीकेशन, वेब डिजाइनिंग एप्लीकेशन। तो डियर स्टूडेंट, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन आता है। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन को विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस, किसी स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है।
इन सॉफ्टवेयर को किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। इनका इस्तेमाल भी किसी कार्य विशेष को करने के लिए होता है, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, रिजर्वेशन सिस्टम, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। बच्चों, सॉफ्टवेयर बनाते कैसे हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना थोड़ा सा कठिन कार्य है। ये हमारा सिलेबस से बाहर है, लेकिन इसको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो डियर स्टूडेंट, कैसे बनाते हैं सॉफ्टवेयर ये हम आपको बता देते हैं, जिसको आप लोग ध्यान से सुनिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना थोड़ा सा कठिन कार्य है, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए आपके पास ज़रूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और बहुत सारा धैर्य होना जरूरी है। तभी आप एक पेशेवर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दर्जनों प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास किया जाता है, जिनके द्वारा आप अलग अलग ज़रूरत के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आप सभी भाषाओं के विशेषज्ञ तो नहीं बन सकते, असंभव नहीं है, आप सीख सकते हैं, मगर शुरुआत के लिए आप जावा, C++ बुनियादी भाषाओं को सीख कर सकते हैं और कंप्यूटर कोडिंग में अपना हाथ आजमा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, तो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पूरी जानकारी मैंने बता दी है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, अब ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपभोक्ता तथा कंप्यूटर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है, जिससे उसमें विंडोज़, मैकओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड आता है। इसमें यूटिलिटीज़ है सॉफ्टवेयर। यूटिलिटीज़ को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन तथा सुरक्षा का कार्य करते हैं, लेकिन इनका हार्डवेयर से सीधा संपर्क नहीं होता है, जैसे डिस्क, एंटीवायरस प्रोग्राम आदि यूटिलिटी प्रोग्राम है। डिवाइस ड्राइवर्स एक होता है सर। डियर स्टूडेंट, डिवाइस ड्राइवर एक विशेष प्रोग्राम होता है जो इनपुट और आउटपुट उपकरण को कंप्यूटर से जोड़ता है, ताकि ये कंप्यूटर संचार कर सके, जैसे ऑडियो ड्राइवर्स, ग्राफिक्स ड्राइवर्स, मदरबोर्ड ड्राइवर्स आदि। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट हम बताएं आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंड यूजर सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध उपभोक्ता होता है, क्योंकि ऐप्स भी इसे कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपभोक्ता को किसी विशेष कार्य करने की आज़ादी देते हैं। इनके कई प्रकार हैं, जैसे बेसिक एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? बेसिक एप्लीकेशन को सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। यह सामान्य इस्तेमाल के सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका उपयोग हम रोज़मर्रा के कार्यों के लिए करते हैं। किसी भी कंप्यूटर उपभोक्ता को कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए बेसिक एप्लीकेशन इस्तेमाल तो आना ही चाहिए। मैंने बताया अभी को बच्चों, तो उसमें क्या क्या आना चाहिए बताया था अभी मैंने। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले क्या आना चाहिए? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, मल्टीमीडिया प्रोग्राम, DTP प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, ग्राफिक्स एप्लीकेशन प्रोग्राम, वेब डिज़ाइन
एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, तो फिर आता है हमारा क्या, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन को विशेष उद्देश्य मतलब स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इन सॉफ्टवेयर को किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। इनका इस्तेमाल किसी कार्य विशेष को करने के लिए होता है। अभी को मैंने बताया कुछ देर पहले आप लोगों को बच्चों, जैसे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, रिपोर्ट कार्ड जनरेटेड, रिजर्वेशन सिस्टम, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसी तरह मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। ये जानना ज़रूरी है बच्चों, जबकि हमारे सिलेबस में नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको शॉर्टकट में आप बनाते कैसे हैं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना थोड़ा सा कठिन कार्य है, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अच्छी जानकारी और बहुत सारा धैर्य होना ज़रूरी है, तभी आप एक पेशेवर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दर्जनों प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास किया गया है, जिनके द्वारा आप अलग अलग ज़रूरत के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आप सभी भाषाओं के विशेषज्ञ तो नहीं बन सकते, और लेकिन असंभव भी नहीं है, आप सीख सकते हैं। मगर शुरुआत के लिए आप जावा, C++ बुनियादी भाषाओं को सीखकर कर सकते हैं और कंप्यूटर कोडिंग में अपना हाथ आजमा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो आप लोगों को कल हम पढ़ाएंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो थैंक यू बच्चों, टेक केयर।